Can you people see my notebook? Yes, teacher. Yes, miss. Okay. So give the next heading as triangle law of vector addition. Give the next heading as triangle law of vector addition. As I said, if you want to say something as a vector, that should follow the vector law of additions. मैम ब्लर If दिख it रहा है, follow, क्या हो गया? ब्लर दिख रहा है बहुत. अब ठीक है? नो मैम. अब अभी भी ब्लर है. Yes, sir. अभी भी ब्लर है? Yes. Yes, miss. अब ठीक है? यस मैम. Yes, miss. Okay. So what I said that if you want to say something as a vector, that should have if it have a magnitude and direction. सिर्फ ये condition cannot say that you are handling a vector. For being a vector, it should also follow vector law of additions, in which the first vector law of addition is triangle law of addition. Now, what is this triangle law of addition? Is that when you're talking about a particular physical quantity, if it wants to be called as a vector, it should follow the triangle law of addition. Let's say what is triangle law of addition. For example, there is an object which is going from O to R. Okay. And then it started going from, there is a vector. It started going from A to O to R, then R to B. Let's not say this as R. O to A and A to B. Okay. कहाँ से कहा गया है? O से A और A से B. ये आपका यहाँ पर A यहाँ पर खत्म हो रहा है और B यहाँ पर. And I am saying that this is Q bar and this is P bar. So इसका जो resultant होगा, it will go from, particularly it will go from O to B. This is R bar. Do you remember we have done something like this while understanding the resultant vector? Yes, miss. Yes, miss. So this condition should be followed, that OA bar should be equals OA bar plus AB bar should be equals to your OB bar. That is P plus Q. So this is called as triangle law of addition. That this plus this should give this. This is called as resultant vector. So अगर कोई ये चीज follow करता है, then it is said to be a vector law. Then it is said to be a vector. अगर उसके पास direction और magnitude है और वो इस law को follow करता है कि going from O to A and then going from A to B. Okay. And if I add this OA plus AB, it should give me OB. अगर वो ये law को follow करता है, if it follows the triangle law of vector addition, then we say that such vectors are called as, such particular physical quantities are called as vector. Are you clear what I said? Yes, yes. And keep it in mind how it goes. See कैसे add किया आपने? O से A, when you are going O to A, ये tail है और ये head है. और दूसरा वाला जब start होगा, तो दूसरे वाले का tail पहले वाले के head से start होगा. It should start like this only. O to A, ये इसका tail है, ये इसका head है. Do you remember this? Yes, miss. Yes, miss. So दूसरा वाला जो है वो इसके head से शुरू होगा, मतलब इसका tail इसके head से शुरू होगा and then it will end up. And the resultant vector will touch tail. Resultant vector का tail आपके O के tail को touch कर रहा है और resultant vector का head आपके
Q के हेड को टच कर रहा है. दिस इज हाउ इट शुड गो. इट शुड फॉलो दिस. समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes, miss. Yes. सबको ये क्लियर है व्हाट आई हैव ड्रॉन? अगर समझो इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, हाउ विल यू राइट? किसको प्लस करोगे और कहाँ पे कैसे लिखोगे? बोलो. R bar plus P bar plus Q bar equal to 180. फिर से बोलो. व्हाट इज सेड? R bar plus P bar plus Q bar is equal to 180. नो, बिल्कुल नहीं. मैंने क्या कहा अभी ऊपर? मैंने कुछ समझाया. मैंने क्या समझाया ऊपर? मैंने क्या समझाया ऊपर कि आप ऐड किसको और किसको करते हो? जिसका लाइक ये आपका टेल है और ये आपका हेड है. फिर इसके हेड से दूसरे वाले का टेल शुरू होता है एंड देन दिस इज हेड. ऐसा कुछ बोला ना मैंने? हाँ मिस. सो एड सिर्फ कौन हो सकते हैं? वही ऐड हो सकते हैं जिनका ये कंडीशन फॉलो हो कि टेल से हेड जाए और उसका स्टार्टिंग, दूसरे वाले का स्टार्टिंग उसके हेड से टेल बनकर हो. देखो जरा यहाँ पर ऐसा कहाँ पर हो रहा है? P bar plus Q bar is equal to R bar. Yes, it should be P bar plus Q bar is equals to R bar. It should go like this. देखो यहाँ पे ये टेल है, ये हेड है, इसके हेड से इसका टेल शुरू हो रहा है एंड देन दिस इज हेड. और बताया था मैंने कि रिजल्टेंट हमेशा टेल से टेल शुरू होता है और हेड पे हेड खत्म होता है. देखो टेल से टेल शुरू हो रहा है रिजल्टेंट का और हेड से हेड खत्म हो रहा है. Yes. कुछ समझे? Yes, तो miss. ये आपको ध्यान Yes, देना है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस व्हाइल राइटिंग, व्हाइल सॉल्विंग. आपको ये चीज देखनी है कि कौन किसका मीट हो रहा है. इफ देयर इज अ वेक्टर, वो स्टार्ट हुआ, उसका टेल से हेड खत्म हुआ, दूसरा वेक्टर का टेल उसके हेड से स्टार्ट होगा, तो ही आप लोग उसको ऐड कर सकते हो. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Yes, miss. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. फिर से बताओ ना टीचर. मैंने कहा कि आप उन्हीं वेक्टर्स को ऐड करना है आपको यहाँ पे जो वेक्टर्स का, अगर समझो ये टेल है और ये हेड है, उसके हेड से, उस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट होना चाहिए. और रिजल्टेंट वो होता है जिसका टेल से टेल स्टार्ट हो और हेड से हेड स्टार्ट हो. सॉरी, टेल से टेल मीट करे और हेड से हेड मीट करे. Yes, teacher. So you can add, you have to add those vectors जिनके हेड से दूसरे वाले का टेल स्टार्ट हो. समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, teacher. एंड रिजल्टेंट में टेल से टेल मिलेगा और हेड से हेड. Yes, teacher. ओके, चलो लेट्स ट्राई टू हैव वन मोर एग्जांपल जिसमें आप मुझे बताओ हाउ कैन यू गो फॉर. ये स्ट्रेट लाइन है. अब बताओ इसको कैसे लिखोगे? P bar plus Q P bar bar is Q plus bar is Q equal to bar R bar. equal to R R bar. bar.
या फिर ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, कोई और भी है क्या वे इसको रिप्रेजेंट करने का? मैम Q p bar bar plus r plus bar P bar r is p equal to plus R r bar. bar equal q bar. डू यू थिंक इट शुड गो लाइक दिस? लाइक अभी देखो हमने क्यू बार को ऊपर जाते हुए रिप्रेजेंट किया था ना, यहाँ पे क्यू बार नीचे की तरफ जा रहा है। डोंट यू थिंक सो? हम प्लस क्यू बार ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो प्लस क्यू बार नीचे की तरफ भी रिप्रेजेंट करना, विल इट बी अ करेक्ट वे? Yes, miss. नो, थिंक अबाउट इट। No, miss, it will be negative. Yeah, it should go for negative. It should go because here Q bar का direction is reversed. As you can see here, Q bar is going upward and here Q bar is going downward. तो दोनों में कोई तो difference होना ही चाहिए ना? There should be some difference. There should be some difference. Now अगर यहाँ पर आप Q bar को upward ले रहे हो तो of course this Q bar will be basically minus of Q bar. यहाँ पर आपका Q bar ऊपर था, यहाँ पर देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है. It's going downward. P बार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट Q बार नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर Q बार ऊपर की तरफ जा रहा था तो हमने प्लस Q लिया था, और यहाँ पर Q बार रिवर्स्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है. So this will basically go for P bar plus of minus Q bar is equals to R bar. So P bar minus Q bar equals to R bar. कुछ समझे what I said? Miss? Yes, miss. बोलो. Miss, what about R? R भी तो नीचे जा रहा है ना? हाँ तो क्या हो गया, वो तो हमारा रिजल्टेंट है, वो तो हमारा रिजल्टेंट है. Okay, miss. ठीक है, रिजल्टेंट तो वही आएगा जहाँ पे आपका, देखो रिजल्टेंट आपका दोनों वेक्टर्स की वजह से आ रहा है. अब आपका क्यू बार ही नीचे जा रहा है तो आपका रिजल्टेंट तो हमेशा एक के टेल से दूसरे के हेड पे ही खत्म होगा. तो अगर आपका माइनस क्यू बार नीचे जाएगा तो रिजल्टेंट तो नीचे की तरफ जाना ही है. आपका मेन वेक्टर्स आर दिस, और हमने प्लस क्यू बार अगर ऊपर लिया है तो हमको सिंपल सा फंडा है कि हमको माइनस क्यू बार, अगर कोई वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमको उसको माइनस क्यू बार कंसिडर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इन दोनों में डिफरेंस क्या रह गया. आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हो चीजों का, तो यहाँ पर तो पूरी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है ना, क्योंकि अगर वो चीज आप दिखाते ही नहीं हो तो आपके वेक्टर का मतलब क्या है. तो समझे? Yes, miss. Yes, miss. सबको क्लियर Yes, हुआ मैंने teacher. क्या कहा? कि why I said that this is plus q bar because ये ऊपर जा रहा है, and here the direction of this q bar is reversed, ये नीचे की तरफ जा रहा है. So here you have to take p plus of minus q. मतलब आप कर रहे हो ऐड ही. आपने जैसे कि कहा था कि अगर एक का हेड और दूसरे का टेल मिलता है तो यू हैव टू ऐड अप. आप कर ऐड ही रहे हो, पर ये क्यू बार का अपना ही डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, तो ये क्यू बार खुद ही अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ. कुछ समझे? आपने Yes, कोई ma'am. रूल नहीं, आपने कोई रूल तोड़ा नहीं है. आपको मैंने जो रूल समझाया कि अगर किसी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलके आगे बढ़ता है तो यू हैव टू ऐड इट, ये बराबर है. बट ये क्यू बार ने खुद ही अपना डायरेक्शन उल्टा किया हुआ है, ये खुद ही नेगेटिव है. आप कर रहे हैं ऐड ही हो, पर इसके खुद के नेगेटिव होने की वजह से आपका रिजल्ट ये आया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, miss. Yes, miss. जैसे कि अगर कोई समझो, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, समझो कोई एक इंसान बहुत बुरा है, उसने बहुत गलतियां की है, पर जब वो अच्छी चीज करता है तो भी उसको कोई कंसीडर नहीं करता. मतलब कर तो वो प्लस ही रहा है, पर उसकी खुद की इमेज की वजह से चीजें प्रॉब्लमेटिक हो गई है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा ये एग्जाम्पल? तो Yes, यहाँ पर miss. हो तो एडिशन ही रहा है, पर ये खुद उसने अपना डायरेक्शन उल्टा किया, नीचे की तरफ रिवर्स किया हुआ, इसलिए हमको इसको माइनस क्यू बार लेना पड़ा. और एडिशन होने के बाद भी खुद माइनस होने की वजह से इट गॉट सब्ट्रैक्टेड. समझ में आया सबको क्लियर है? Yes, miss. कोई ऐसा है जिसको ये लॉ क्लियर नहीं है, प्लीज क्लियर करके लो. ठीक है, इफ एवरीवन इज क्लियर लेट्स गो अहेड, गिव द हेडिंग एज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये ड्रॉ करके लो. तो ड्रॉ इट अवे, लिख के लो, ड्रॉ करके लो, फिर मैं लिखवाती हूँ.
पेंसिल एंड स्केल लेके प्रॉपरली ड्रॉ करना है. सब लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना? Yes, miss. Yes. Once you are done, let me know. मैम जरा ऊपर लो ना पेज. ठीक है. मैम ऊपर. मिस थोड़ा नीचे करो ना. Are you people done? Yes, हो yes, गया ड्रॉ miss. करके? मिस. Yes. मैंने बोला था ना ड्रॉ करके हो Yes, जाए teacher. तो बताओ. चलो स्टार्ट राइटिंग. जरा लिख के लो पहले. If two vectors describing the same physical quantity, if two vectors describing the same physical quantity are represented in magnitude and direction. If two vectors describing the same physical quantity are represented in if two vectors describing the same physical quantity are represented in magnitude and direction, magnitude and direction, by two sides of a triangle, by two sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented in
then the resultant is represented in magnitude and direction. Then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle starting from tail of the first vector मैम फिर से रिपीट कीजिए if two vectors describing the same physical quantity are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle starting from tail of the first vector. First vector की tail से start होता है ना resultant. Starting from tail of the first vector and ending to head of the second vector. Starting from tail of the first vector and ending to head of the second vector. And ending to and ending to and ending to head of the second vector. हो गया? Yes, Yes, miss. miss. Yes, miss. ये लिख के लिया सबने? Yes, miss. Yes, miss. Yes. Write down next as subtraction of vector. Subtraction of vector. और ये पहले ये ऊपर का ड्रॉ करके लो फिर नीचे का लेना. Subtraction of vector by triangle law of addition. Subtraction of vector by triangle law of addition. Subtraction of vector by triangle law of addition. पहले ये ड्रॉ करके लो फिर ये ड्रॉ करके लेना तो समझेगा कि इसमें प्लस क्यू क्यों लिया क्योंकि ये यहाँ पर क्यू ऊपर की तरफ जा रहा था यहीं पर दूसरे में माइनस क्यू लेना पड़ा क्योंकि क्यू नीचे की तरफ जा रहा है पहले ये ड्रॉ करके लो सब लोग मैम वो नीचे का डायग्राम दिखाओ ना प्रॉपरली पेंसिल स्केल लेके ड्रॉ करो मैम तो वो नीचे का डायग्राम का P माइनस क्यू आएगा ना यस P प्लस ऑफ माइनस क्यू लिखो
हो गया सबका? Done, miss. हो गया मिस। हो गया? ठीक है. Give the next heading as proof vector additions are commutative. Proof vector additions are commutative. Give the heading as vector additions are commutative. Proof vector additions are commutative. मैम नहीं ये दिख रहा commutative और ये commutative को ऐसे डबल अंडरलाइन करो. It's a property of vector addition. Vector additions are commutative और ये commutative को डबल अंडरलाइन करो. ये आपको लाइफ टाइम यूज होने वाली चीजें हैं. What is commutative समझाती हूँ. First do this. Now basically you know 2 plus 3 is equals to 3 plus 2. Is this right? यस मिस। 2 plus 3 करोगे तो भी 5 आएगा, 3 plus 2 करोगे तो भी 5 आएगा. इसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब सीधे प्लस करो या उल्टा प्लस करो आपको सेम आंसर आएगा. दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. समझे सबको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? Yes, miss. Either you write 2 plus 3 or you write 3 plus 2. This property is called as commutative property. Is this everyone clear what is commutative property? यस मिस। Yes, miss. So we have to prove P plus Q is equals to Q plus P. ये प्रूफ करना है हमको. चाहे P plus Q लिखो या Q plus P लिखो, एक ही बात होती है. This is what we are going to prove. Is this everyone clear? यस मिस। Yes, miss. Okay. अब यहाँ पे ध्यान से देखो. There is a vector which is starting from O and ending at A. Okay. Then this is P. Now there is a vector which is starting from A and ending at B. So basically your Q. And of course, इसका resultant will start from tail of the first vector to the head of the second vector. ऐसा जाएगा. अभी हमने triangle of factorization में बताई ये बात कि resultant हमेशा tail first vector के tail से शुरू होता है और second vector के head पे खत्म होता है. Do you remember this? Yes, miss. This is R1. Okay. Now, let's say there is a vector which is going from O to C. In short, I am going to form a rectangle. अगर आप ध्यान से देखो तो it's a type of rectangle. और जो ये Q है यही Q का वैल्यू यहाँ पे आएगा because you know rectangle का opposite sides are same. And of course, if this is P bar, this will be P bar. कुछ देख पा रहे हो? कुछ समझा ये डायग्राम में कैसे ड्रॉ किया है? यस मिस। यहाँ पे जो R बार होगा वो होगा P बार प्लस Q बार, है ना? P बार प्लस Q बार will give me R bar. Is this clear? ब्लर दिस रही है टीचर. क्या हुआ?
ब्लर दिख रही है। यार अभी तो ठीक था, अब ठीक है। यस टीचर। P bar plus Q bar will give me R bar। ये सबको क्लियर है क्या? यस और Yes, miss. लेट मी नो। आप लोग मुंह बंद करके बैठोगे, मुझे कैमरास ऑन करवाने पड़ेंगे। Yes, miss. इज दिस क्लियर? P bar plus Q bar is giving me R bar। ये सबको क्लियर हुआ? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. अब यहाँ पर कैसा होगा? यहाँ पे पहला वेक्टर ये है, हमको पता है ना, हमारा रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पे जाता है, तो पहला वेक्टर ये है, उसके टेल से शुरू हो रहा है रिजल्टेंट और इसके हेड पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? Q bar Q plus bar P bar plus P bar is is equal to equal R to bar. P bar. Q bar plus P bar is equals to R R bar. bar. R bar। ये सबको क्लियर हुआ? यहाँ पे P plus Q is equals to R लिखा, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर ये था, सेकंड वेक्टर ये है। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ये है और सेकंड वेक्टर ये है। समझा इसको फर्स्ट वेक्टर क्यों बोला? क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट वेक्टर के टेल से शुरू होता है और सेकंड वेक्टर के हेड पे खत्म होता है। सो फर्स्ट वेक्टर के टेल से शुरू हुआ है और सेकंड वेक्टर के हेड पे खत्म हुआ है, तो सेकंड फर्स्ट वेक्टर मेरा Q बार है यहाँ पे और सेकंड वेक्टर P बार है। यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर के टेल, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर P बार है और सेकंड वेक्टर Q बार है। कुछ समझ आ रहा है? Yes, miss. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. टीचर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा कि Miss, why I am फिर से saying this repeat as कीजिए first ना। vector? बोलो। मिस फिर से रिपीट कीजिए ना एक बार। रिजल्टेंट हमेशा कहाँ से कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? बताओ। रिजल्टेंट हमेशा कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? टेल से शुरू होता है और हेड पे किसके खत्म टेल होता से शुरू होता है? किसके टेल से शुरू होता है? ये मैटर करता है, किसके टेल से शुरू होता है रिजल्टेंट? बोलो, किसके टेल से शुरू होता है रिजल्टेंट? जाओ जरा ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ो सब लोग। गो अहेड, कैमरास ऑन करो और गो टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन एवरीवन। मैं ये ऑफ कर रही हूँ। गो टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन और फाइंड आउट करके दो मुझे कि रिजल्टेंट कहाँ से शुरू होता है, किसके टेल से शुरू होता है और किसके हेड पे खत्म होता है। चलो First vector. गो अहेड एवरीवन, सब लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन पे जाओ। कैमरास ऑन करने के लिए बोला है, एक का भी कैमरा ऑफ मिला है सीधा वेटिंग में डलवा दूंगी। सिंगल टर्म में आप कैमरास ऑन नहीं हुआ ना मेरे लेक्चर में, सीधा क्लास से निकलवा दूंगी मैं। अब ये नॉर्मल फिजिक्स नहीं रह गया, आपको सीखने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। मैम जिसका भी कैमरा ऑफ है सबको निकाल दो मेरे क्लास से, कोई मेरे क्लास में नहीं बैठेगा। ओम सांगले, आदित्य, पूर्वा, मैम इनको मेरे लेक्चर से निकाल दो। ये जितने भी है ना कैमरास ऑफ वाले, मेरे को कोई नहीं चाहिए मेरे बैच में। देवेश, जानवी, तुम लोग कितनी बार चिल्लाना पड़ता है फॉर अ सिंगल थिंग? एम आई मैड हो भैया? माधुरी मैम आप हो यहाँ पे? होस्ट आर यू हियर? हाँ बोलो। ये जितने भी कैमरास ऑफ है ना, इनको मेरे बैच से निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए ये लोग मेरे बैच में। और इनका नाम है पर्टिकुलरली एमपीसी सर के पास जाना चाहिए। मैं 4 बार नहीं चिल्लाने वाली हूँ एक ही चीज के लिए। बहुत स्मार्ट बनते हैं ये आर्या गवित, रितेश पवार। अगर आप लोग का कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो अनम्यूट करके रीजन बताओ।
अदरवाइज वेटिंग रूम में बैठो। हेलो मैम, कौन बोला? सृष्टि। बोलो सृष्टि। मैम, आई एम हैविंग नेटवर्क इशू। ओके उदय, क्या रीजन है कैमरा ऑफ का? जब कोई चीज इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, एक बार आप लोग, 2 बार, एक बार आप लोग कैमरास ऑन नहीं कर सकते इतना समझाने के बाद भी? व्हाट इज दिस? एम आई मैड ओवर हियर? टीचर पागल है? Start reading vector triangle law of addition. Start reading everyone and find out कि रिजल्टेंट का वेक्टर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। प्रकृत रीड कर रहा है, कैमरे को देख रहा है। तुम लोगों को कैमरे पे देखने के लिए नहीं कैमरा ऑन करवा के रखा है, बुक पे देखने के लिए रखा है। कैमरे पे मत देखो, बुक पे देखो। आदित्य, बाहर किधर देख रहा है तू? तेरा घर फर्स्ट टाइम देख रहा है क्या तू? सबने रीड किया? वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ से शुरू होता है? Where it starts from according to law of vector addition? First and Tail of the first vector. टेल Tail ऑफ द of the फर्स्ट first वेक्टर। vector. और end कहाँ पर होता है? Head of the Head second vector. Vector. Head of the second vector. ये बात सबको क्लियर हुई? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझा? What it says? It says that कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, there is a vector which is representing the same physical quantity. Of course हम लोग same physical quantity के बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग physical quantities को लेकर ये एडिशन नहीं किया जा सकता। Same physical quantity मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के साथ डील करोगे, दोनों वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप वेलोसिटी के साथ काम करें तो दोनों वेक्टर्स वेलोसिटी को ही ऐड करेंगे। और ये बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि वेक्टर्स पे सेम फिजिकल क्वांटिटी और सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये चीज तो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं।
नाउ व्हाट इट इज सेइंग दैट कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के हिसाब से ऐसा है कि अगर आपका वो जो वेक्टर है, वो जो पर्टिकुलर वेक्टर है, वो दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका जो थर्ड साइड होगा, जैसा भी ऑर्डर दिया है उस हिसाब से, उसका जो थर्ड साइड होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा फर्स्ट वेक्टर के टेल से शुरू होगा और सेकेंड वेक्टर के हेड पे खत्म होगा। ये स्टेटमेंट लास्ट में वहां पे अच्छे से लिखवाया हुआ है कि रिजल्टेंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर and ends to the head of the second vector। ये सबको क्लियर हुआ? ये नहीं समझोगे तो मैं जितने भी प्रूफ्स करवाऊंगी कुछ भी नहीं Yes, समझेगा। इसीलिए मैंने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मैंने बोला आपको कि आप लोग पूछ लो अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, जस्ट लुक एट दिस। अब इसको देखो जरा ध्यान से। सबको मेरा बुक दिख रहा है? Yes, teacher. Yes, miss. Yes, ma'am. ये मेरा एक वेक्टर है विच इज गोइंग फ्रॉम O to A, फिर देयर इज अ सेकंड वेक्टर विच इज गोइंग फ्रॉम A to B। ये ऐसा डायरेक्शन में गया है, इसके एरोस के हिसाब से जाओ। समझो ये आपका रोड है, गए गए गए, ये एरोस आपको डायरेक्शन बता रहा है। यहां से गए ऐसे, यू वेंट फ्रॉम दिस टू दिस, O to A एंड देन A to B। इज दिस एवरीवन क्लियर? सो इसका जो रिजल्टेंट yes. होगा, Yes. ये मेरा फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर and this is my second vector, so इसका resultant will be starting from tail of the first vector and ending to head of the second vector। ये इसका resultant clear हुआ सबको? Yes, miss. Yes, miss. Yes, teacher. सबको clear हुआ? starting from tail of the first vector, ये देखो इसका tail है, ये O tail है, tail of the first vector and ends to the head of the second vector। everyone is clear with this? Yes, miss. Yes, miss. Now what I'm doing? Now I'm starting moving from here to here, and then I went from here to here, ऐसे गई। Now ये ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं, we have already drawn this। So देखो जरा, अब इन दोनों में से फर्स्ट वेक्टर कौन सा होगा? जिसपे का टेल लगेगा, टेल से टेल मिलेगा। So मेरा फर्स्ट वेक्टर यहाँ पर कौन होगा? Who will be my first vector here? Q. टेल से टेल किसका मिल रहा है? Q। And what will be my second vector here? P. P. तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट वेक्टर ये हो जाएगा और सेकंड वेक्टर ये हो जाएगा। मतलब जब यही रिजल्टेंट इसका था, जब यही रिजल्टेंट, जस्ट वेट फॉर, जस्ट लुक एट दिस। जब ये पी के टेल में ये आर का टेल मिल रहा था, देखो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, दिस वाज द रिजल्ट। पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर। ये सबको क्लियर हुआ? Yes. Yes, miss. P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू आर। देखो इसका रिजल्टेंट का टेल मिल रहा है, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से ये इसका रिजल्टेंट शुरू हो रहा है, और हेड ऑफ द सेकंड, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है और ये मेरा सेकंड वेक्टर है। टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर के टेल से इसका रिजल्टेंट शुरू हो रहा है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से इसका रिजल्टेंट शुरू हो रहा है, और सेकंड वेक्टर के हेड पे इसका रिजल्टेंट खत्म हो रहा है। वही वो बोलता है कि आपका रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के टेल से शुरू होता है और सेकंड वेक्टर के हेड पे खत्म होता है। इज दिस एवरीवन क्लियर? Yes, Yes, miss. miss. नाउ जस्ट लुक एट दिस। अब मुझे कोई बोले, बिना बताए मुझे कोई बोले कि टेल मी विच इज फर्स्ट वेक्टर एंड विच इज सेकंड वेक्टर, तो सीधा क्या करने का, देखने का कि रिजल्टेंट किसके टेल से शुरू हो रहा है और रिजल्टेंट किसके हेड पे खत्म हो रहा है। किसके टेल से शुरू हो रहा है रिजल्टेंट? Q. Q. क्यू के टेल से शुरू हो रहा है, और खत्म किसके 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 हेड पे हो रहा है? Q के। किसके?
ठीक है ठीक है फर्स्ट वेक्टर कौन है यहाँ पे? क्यू क्यू और सेकंड वेक्टर कौन है यहाँ पे? पी पी ये सबको समझ में आ रहा है क्या? अभी भी कंफ्यूज हो? समझा मैं समझा मिस समझा यहाँ पे 50 लोग हैं, मेरे को सिर्फ 4 लोग का वॉइस क्यों आ रहा है? There are 50 people here. Why only 2 to 3 people are answering me? बच्चों ये नहीं समझेगा, पूरा वेक्टर एडिशन बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ इसी पे करना है हमको। हमको ये समझ में आना चाहिए रिजल्टेंट कहाँ से शुरू होता है, रिजल्टेंट खत्म होता है, किसको फर्स्ट वेक्टर बोलोगे, किसको सेकंड वेक्टर बोलोगे, ये समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको एक वेक्टर ड्रॉ करके दे देगा, आपको यही समझ में नहीं आएगा फर्स्ट वेक्टर किसको लूं, सेकंड वेक्टर किसको लूं। सीधा आपको ड्रॉ करके देगा, आपको पता करना पड़ेगा ये चीज। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? देयर आर 50 पीपल हियर, कैन यू स्पीक अप? यस मिस एक अकेला टीचर पूरी बिल्डिंग को पढ़ा रहा है ऐसा लग रहा है। आर्यन समझा? यस मिस दिव्या समझा? यस मैम समझा क्रिश, पूर्वा, आदित्य? यस मिस यस मिस अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ मुझे, इसमें फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, सेकंड वेक्टर कौन सा है, रिजल्टेंट कौन सा है? बताओ। फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर बी है और थर्ड वेक्टर सी है। सी रिजल्टेंट सी है, क्योंकि सी स्टार्ट हो रहा है इसके टेल से और खत्म हो रहा है इसके हेड पे। तो ऑफ कोर्स जिसके टेल से स्टार्ट होता है वो हमारा फर्स्ट वेक्टर होता है, और जिसके हेड पे खत्म होता है वो हमारा सेकंड वेक्टर होता है। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। यस मिस सो रिजल्टेंट को पहचानने का एक ही तरीका है कि देखना है कि रिजल्टेंट किसके टेल से स्टार्ट हो रहा है और किसके हेड पे खत्म हो रहा है। जिसके टेल से स्टार्ट हो रहा है वो मेरा फर्स्ट वेक्टर, जिसके हेड पे खत्म हो रहा है वो मेरा सेकंड वेक्टर। इज दिस एवरीवन क्लियर विद दिस कांसेप्ट? यस मिस यस टीचर यस मिस ठीक है। सो फ्रॉम this way. मैम आपका माइक म्यूट हो गया Okay, can you see my page clearly or it is blurred? मिस इट इज ब्लैक मिस ब्लर ठीक है Clear है, ठीक है। Actually, this is not the correct way of drawing, but since I am drawing it again because मैं already draw कर चुकी हूँ तो आपको पता है अपनी बात। अब दिख रहा है सबको? क्लियर है? यस मिस यस मिस चलो जरा लिखते हैं। In triangle OAB, OAB दिख रहा है सबको ट्राइंगल? यस यस मिस मिस According to law of vector addition,
OA bar AB bar is equals to OB bar. देख लो जरा, OA bar plus AB bar will be your OB bar. Do you accept this? Yes, miss. Now OA bar क्या है हमारा? P bar कैपिटल लिखवा, एंड AB bar क्या है हमारा? Q bar, और OB bar क्या है हमारा? R bar. This is equation R number 1. bar. ये सबको समझा? Yes, Yes, miss. miss. Yes. Now in triangle OCB, फर्स्ट फैक्टर कौन सा है इसमें? आप व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर? OC, Q. Yes. So OC bar plus CB bar is equals to OB bar. देख लो, OC bar plus CB bar is equals to OB bar. Do you accept this? Yes. Yes. And OC bar क्या है हमारा? Q. Therefore, from first and second, P bar plus Q bar equals to Q bar plus P bar. Proved. Commutative property is proved. Is this everyone clear with the Yes, derivation? miss. Actually आप लोग बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करवा रहे हो, जिसकी वजह से चीजें आधी छुप जा रही है. I want you to see the diagram as well. Now just look at the derivations, everyone. दिख रहा है क्या सबको? मैम ब्लर Miss है. blur हो रहा है. बिल्कुल क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर ही नहीं है एकदम. Yes, miss. क्लियर नहीं है बिल्कुल. ऐसे क्यों हो रहा है? अब ठीक है? नहीं. अब ठीक है? आपने एकदम जूम कर दिया. Yes. ठीक है, अगर अभी क्लियर है तो फिर ये देख लो. जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम. ये हेडिंग के नीचे डायग्राम ड्रॉ करके लो. You know what is the network issue today? क्यों ऐसा हो रहा है? Just draw this diagram, everyone. डन. सबने ड्रॉ कर लिया? Wait, miss. Are you people done with the diagram? Yes, miss. Yes, teacher. Yes, miss. Yes, miss. Okay, start writing this. जितना भी पेज में दिख रहा है वो हो जाए तो लेट मी नो. उतना लिखा हो गया. मैं
मैम थोड़ा नीचे करो मैम। हुआ मिस। हो गया मिस। मिस हो गया। ये जो जितना पार्ट दिख रहा है उतना हो गया तो बताओ, आई शिफ्ट इट टू द अनदर साइड। यस मिस हो गया। हो गया मिस। डन, डन। यस मिस। सबका हो गया। यस मिस। यस मिस। सब लोग जरा डेरिवेशन को गो थ्रू करो और सबने प्रॉपरली बार्स डाले हैं ना ऊपर, बिकॉज वेक्टर को बार डालना ही होता है। अगर डेरिवेशन लिखते वक्त आपने बार नहीं डाला, मैं मार्क्स काट दूंगी, मैं स्ट्रेट अवे बोल रही हूँ, बिकॉज दिस बार इज इटसेल्फ रिप्रेजेंटिंग इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। माधुरी मैम, हाँ, यहाँ पे जितने लोग